बिकॉज रूट मीन स्क्वायर निकालने की जरूरत इसलिए पड़ी कि अगर मैं एक वेव लूं, जस्ट टेक एन एग्जांपल, कि इफ आई टेक अ वेव, ओके, एक साइनसॉइडल वेव लूं और मैं बोलूं कि अगर इसका एवरेज निकालो, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ दिस वेव, किसी भी चीज का एक फंक्शन है ये, उसका एवरेज निकालो, तो व्हाट यू विल फाइंड कि जितना पॉजिटिव पार्ट में है उतना ही नेगेटिव पार्ट में भी अवेलेबल है, करेक्ट? तो अगर मैं इस ओवरऑल वेव का एवरेज निकालूंगी, सो आई विल गेट द एवरेज एज 0, करेक्ट? बट एक्चुअली में ये 0 है क्या? नहीं. सो फॉर इम्प्रूविंग दिस प्रॉब्लम हमने क्या किया, इंस्टेड ऑफ गोइंग विद द एवरेज वी फाउंड आउट न्यू पार्ट विच इज नोन एज रूट मीन स्क्वायर. जैसे कि मैंने इसके नाम के आगे तुमको ऑलरेडी सजेस्ट किया है कि रूट मीन स्क्वायर, ये नाम जैसे स्ट्रेट जा रहा है आपको उल्टा करना है. पहले आपको स्क्वायर लेना है, स्क्वायर का आपको मीन लेना है, मीन का आपको रूट लेना है. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज रूट मीन स्क्वायर. ओके, आई एम रिवाइजिंग द होल डेरिवेशन अगेन, दो आपने वो डेरिवेशन सॉल्व किया, प्रैक्टिस किया, बट स्टिल आई एम रिवाइजिंग इट. ठीक है, ध्यान से देखो. वी प्रूव्ड दैट कि जो प्रेशर आइडियल गैस अप्लाई करता है, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स अप्लाई करते हैं ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला 1/3 स्मॉल m कैपिटल N V बार स्क्वायर अपॉन कैपिटल V. अब यहाँ पर स्मॉल m is the mass of that single molecule, capital N is the number, total number of molecules, V bar square is the square of a average speed. ठीक है, average of a square of a speed. Okay, and this capital V is the volume of that container. Now after this we can calculate the root mean square with the help of this. हम इसको थोड़ा सा adjust करेंगे and we'll get the formula as V bar square is equals to 3PV upon capital N into small m. Okay, now next what we are going to do, यहाँ पर स्क्वायर हो चुका है, मीन हो चुका है, मीन्स एवरेज हो चुका है. नाउ एक ही चीज बची है रूट मीन स्क्वायर में निकालने के लिए. स्क्वायर वी आर डन विथ, एवरेज दैट इज मीन वी आर डन विथ, बस बच गया रूट अकॉर्डिंग टू द नेम. सो विल टेक अ रूट ऑन बोथ द साइड्स एंड वी गेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड, दैट इज VRMS is equals to under root of 3PV upon N into M. अब हमको पता है कि PV is equals to nRT होता है for ideal gas. Okay, so we'll substitute this PV as nRT and our derivation becomes, our step becomes VRMS is equals to under root of 3, PV की जगह पे हम nRT substitute कर रहे हैं upon capital N into small m. Okay, next VRMS is equals to, अब हमको पता है कि n क्या होता है, it is the number of molecules which you are taking for the experiment divided by Avogadro number, correct? This is the number of atoms or molecules which you are taking for experiment, and Na is the Avogadro number, that is the number of atoms in 1 mole. So we'll substitute the small n as capital N by Na and we get the equation as under root of 3 times small n की जगह पे we'll substitute capital N by Na. यहाँ पे RT वैसे ही रहने दो, नीचे आएगा N into M. This NN got cancelled and you got the equation as VRMS is equals to under root of 3RT upon Na to M. अब this Na into M, ये जो Na into M है, that is Na dot M is actually your molar mass. ये मैंने explain किया था कि why it is molar mass. This is mass of a single atom. Okay, हमने single atom consider किया था and total number of atoms कितना है, Na है. ठीक है, so
ओम का ये डाउट था जो कि कल मैंने क्लियर किया था. So Na.m is your molar mass, and we got the equation as Vrms is equals to under root of 3 RT by m naught, where R is known as universal gas constant, capital T is your temperature of the gas, and m naught is the molar mass of the gas. Keep it in mind, m naught is the molar mass of the gas. Okay, now we compared it with the speed of sound in the gas. हमने speed of sound के साथ इसको compare किया था. Speed of sound in gas. और हमको पता है speed of sound is given by the formula V is equals to under root of gamma RT by m naught, where this gamma is your adiabatic constant. Adiabatic condition क्यों ले रहे हैं ये हमने 11th standard में पढ़ा है. What is adiabatic? When there is no gain or loss of heat in the system. जब system में या ना तो there is no loss, ना ही वहां पर कोई gain होगा heat का, ऐसे conditions को हम adiabatic conditions बोलते हैं. So this gamma is your adiabatic constant, which is given by the ratio of Cp by Cv, where Cp is the specific heat at constant pressure and Cv is the specific heat at constant volume. If I go ahead with gamma and I take a monoatomic gas, monoatomic का मतलब मैं तुमको आगे समझाऊंगी जब हम degree of freedom पढ़ेंगे. Monoatomic gas like hydrogen is a type of monoatomic gas. So here our gamma here is 5/3. If I substitute this 5/3 over here and I compare these two formulas, I'll get that this was the speed of your atom or particle, and this one is the speed of sound in the gas. And by comparing these two formula, after substituting gamma is equals to 5/3, I found that speed of particle is more as compared to speed of the gas. Bolo. Please mute yourself. Is there anyone having doubt here? You're not audible to me. You're not audible to me. This is the speed of a, if I compare these two speeds, I can find that the speed of the particle is higher, is more as compared to the speed of a sound in gas. But overall, if you find it, if you observe it, you will find that they are of same order, almost the same order के होते हैं. बहुत बड़ा difference देखने के लिए नहीं मिलता. Okay, now next, this was all about the root mean square speed. Okay, next that we are going to discuss today is interpretation. This is the new topic for today. After this, we will go ahead with the sums of these two topics. Okay, next is interpretation of temperature in kinetic theory of gases. The next topic that we are going to discuss is interpretation of temperature of gas in kinetic theory of gases. इसका मतलब क्या है, क्या पढ़ने वाले हो इसमें? You are going to discuss the relation of temperature. You are going to discuss the relation of temperature with
kinetic energy, means you'll find the relation between temperature and kinetic energy. और हम लोग जब इसको प्रूव करेंगे, what we will find कि ये जो हमारी kinetic energy है ना गैस की, आइडियल गैस की, वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करती है, वो होता है उसका टेम्परेचर. इट ओनली डिपेंड्स ऑन इट्स टेम्परेचर. इस काइनेटिक एनर्जी को और किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता. अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आपकी काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होगी. ओके, नाउ while discussing about this kinetic energy, see already we have discussed the property of ideal gases. Okay, ideal gases के जो molecules होते हैं, of course उनके बीच में there is no interaction, उनके बीच में interaction नहीं होता. It means कि इनके बीच में see अगर interaction नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं चल रही है, they are totally free to move. It means इनके बीच में जो potential energy है, this is equals to 0. करेक्ट. मतलब जो भी एनर्जी इनके बॉडी में होगी, वो सारी की सारी एनर्जी इनके किस फॉर्म में होगी? सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी. देयर विल बी नो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन दिस टू मॉलिक्यूल्स. ठीक है. हम जब आइडियल गैस में रियल गैस को कन्वर्ट करते हैं, व्हेन वी कन्वर्ट दिस रियल गैस इनटू आइडियल गैस, हम जो भी केसेस लेते हैं कि ओके व्हाट वी विल डू, वी विल रिड्यूस आवर प्रेशर वेरी मच लो, हमारा टेम्परेचर हम बहुत ज्यादा हाई करेंगे. दिस आर द केसेस कि प्रेशर बहुत लो कर दो, टेम्परेचर बहुत हाई कर दो. इसका मतलब हम करने की कोशिश क्या कर रहे होते हैं? हम ये जो मॉलिक्यूल्स है ना रियल गैसेस के, इनके बीच में जो थोड़ा बहुत भी इंटरेक्शन है, इस कंडीशंस को यूज करके हम ये इंटरेक्शन खत्म करने की कोशिश करते हैं. मतलब इनका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हम क्या करते हैं? जीरो करने की कोशिश करते हैं. तो ही ये किसमें कन्वर्ट हो सकते हैं? आइडियल गैस में. मतलब आइडियल गैस इतने फ्री होते हैं कि इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? 0. मींस इनका टोटल एनर्जी जो भी है इन पार्टिकल्स का, वो सारा का सारा किस फॉर्म में होता है? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होता है. मतलब जिस तरीके से काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, उसी तरीके से इसका टोटल एनर्जी भी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. ओके, दैट वी विल प्रूव हियर. टिल हियर किसी को कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क, और शुड आई गो अहेड? Should I go ahead then? Hello, ma'am. Now I'll go ahead. Okay. Now we'll go ahead with the proof. Hello. हाँ मैम, आपने मैम पोटेंशियल एनर्जी रहता है बॉडी के पास, तभी वो काइनेटिक में कन्वर्ट होके फिर वो बॉडी चलता है ना. So how potential can be 0? यहाँ पर see, you know that kinetic energy is responsible for moving of a particle. Yes. Okay, correct. So Yes. यहाँ पर see, मैंने तुमको जब पोटेंशियल एनर्जी समझाया था, मैंने कहा था कि ये कब डेवलप होता है? ये पोटेंशियल एनर्जी बॉडी में डेवलप कब होता है? जब आप किसी फोर्स के अगेंस्ट में या फोर्स के इफेक्ट में काम करते हो. करेक्ट. बट इन पार्टिकल्स के बीच में तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, ये एकदम फ्री है. अच्छा, हाँ, किसी का अपोज नहीं है. हाँ, दे आर टोटली फ्री. यही तो आइडियल गैस का सबसे फर्स्ट कंडीशन है कि देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन देम. इनको किसी से ना, इसको इससे कोई फर्क पड़ रहा है ना इसको इससे कोई फर्क पड़ रहा है. मींस दे आर नॉट एट ऑल इन इफेक्ट ऑफ एनीथिंग. ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो हियर द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू 0. It is an assumed gas. You know, in reality, no one have potential energy equals to 0. Potential energy exists, but it is minimum. Correct? But here, yes, since it is an assumed gas, so we are assuming here that potential energy is equals to 0 in this case. So जो भी उसकी एनर्जी है, टोटल एनर्जी, वही उसकी काइनेटिक एनर्जी भी है. समझा? हाँ मैम, समझा. Okay, we'll go ahead with the proof now. Now we know, we have already proved that pressure is given by 1/3 small m capital N V bar square upon capital V. Okay. Now ये V को हम यहाँ लेके जाएंगे. This becomes PV is equals to 1/3 small m capital N V bar square. Now what we are going to do, थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं इक्वेशन को, and we'll get the equation as
we'll get the equation as PV is equals to 1/3, n को साइड में लेते हैं और mv bar square को साथ में लेते हैं, ठीक है. Again I am repeating, this capital P is the pressure exerted by the gas molecule, ideal gas, on the walls of the container. This capital V is the volume of a gas, capital N is the number of molecules, small m is the mass of the molecule, and V bar square is the average of a square of a speed. Correct? Okay. Now, what I'm going to do, multiplying and dividing by 2. Multiplying and dividing by 2. Okay. We'll get the equation as PV is equals to, मैंने right hand side में multiply and divide किया है by 2. So this becomes 2/3 n 1/2 m v bar square. Okay. Now here, next we'll go ahead. We know that this half m v bar square is an average kinetic energy. This part is an average kinetic energy. Okay. And you know that ki, as I said, ki potential energy between the two molecules is 0. So जो उसकी kinetic energy होगी, okay, वही उसका total energy भी होगा. Means your total energy is purely your kinetic energy. Okay. So here this half m v bar square becomes your energy, E is equals to half m v bar square. Okay. But सारे particles की बात कर रहे हैं, so I am multiplying this by n. Means total energy of the gas molecule becomes half m v bar square dot n. ठीक है, ये पूरे gas molecule की total energy हो गई. Now we will substitute this in the above equation. It becomes PV is equals to 2/3, वैसे ही रहने दो. उसकी जगह पे ये जो n half m v bar square है, उसकी जगह पे what we will substitute? We will substitute this capital E. So we got the equation as PV is equals to 2/3 of capital E. Are you clear till this much? No doubts? Okay. Now I'll go ahead. अब हमको पता है, we'll substitute this here. हम लोग relate करने वाले हैं energy को with the temperature. ठीक है? हमको पता है PV क्या होता है. PV is your N kBT. Correct? We'll substitute this above, where N is the number of molecules, Kb is the Boltzmann constant, and capital T is the temperature of the gas. Okay. So when I substitute this in the above equation, it becomes N kBT is equals to 2/3 of E. Correct? Now we'll go ahead. Therefore, E is equals to, अगर मैं E को अलग करने की कोशिश करूं, सेपरेट करने की कोशिश करूं, E is equals to 3/2 of N kBT. ठीक है? अब मुझे अगर पता करना है कि एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितना है, so what I will simply go for, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, this is the total number of molecules. Per molecules करना है तो I'll simply divide this below. So this will be E by N, that is average energy per molecule, is given by the formula 3/2 kBT. अब यहाँ पर अगर तुम ध्यान से रिलेट करो, एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल only depends upon 3/2 तो कांस्टेंट है, Kb is a Boltzmann constant, again it is a constant, तो सिर्फ बचा क्या, टेम्परेचर. Means your average energy per molecule or kinetic energy per molecule simply depends on what, temperature. मतलब अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो आपके मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी या फिर टोटल एनर्जी चेंज होगा
अदरवाइज काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी चेंज नहीं होगा. मीन्स योर एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल और एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल only depends upon temperature. This is what we are going to relate. And you can see here that दो मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज एक दूसरे से कनेक्ट हुए हैं. यस, करेक्ट. यहाँ पे कैपिटल टी और एनर्जी दो मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज एक दूसरे से कनेक्ट हुई हैं. You can see this. If you have doubt till here, your derivation gets over. If you have doubt till here, you can ask. कोई डाउट है तो पूछो. नो डाउट्स एनीवन? ओम, एवरीथिंग इज क्लियर? अदर स्टूडेंट्स, बालाजी? ओके, नाउ इस बेसिस पे तुमको बहुत सारे सम्स आगे जाकर सॉल्व करने हैं बाय यूजिंग दिस टू फॉर्मूलाज. एक तो रूट मीन स्क्वायर, उसके बेसिस पे आज हम कुछ सम सॉल्व करेंगे, और नेक्स्ट हम एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड कुछ सम सॉल्व करेंगे. ओके, बिफोर दैट आई विल डिस्कस वन टॉपिक विथ यू. बोथ पॉइंट ऑफ व्यू इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट knowledge point of view it is important, so we need to discuss about it. Okay, now see, always remember that we know about the behavior of a gas. Now starting mein it was very tough to assume everything. Means you were like, ma'am, why to assume these things, why it is necessary to assume the things. But as you can experience it, you know about your 11th standard, correct? कि जब तुम फर्स्ट आए थे तो you was like, ma'am, why should we assume everything and we should go ahead. But then you realize कि नहीं, धीरे धीरे आगे बढ़ना जरूरी है. See, ये जो काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस है ना, ये आपके क्वांटम मैकेनिक्स को जन्म देता है. क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में मैंने थोड़ा बहुत तुमको डिस्कस किया हुआ है, बहुत डीप में कुछ नहीं समझाऊंगी अभी फिलहाल, बट ये तुम्हारे मॉडर्न फिजिक्स को जन्म देता है. मीन्स ये काइनेटिक थियोरी के एजम्पशंस आपके एक नए फिजिक्स का बर्थ करते हैं. ओके, जब काइनेटिक थियोरी, जब गैसेस के थ्योरी के बारे में डिस्कशन स्टार्ट हुआ, तब लोगों को ना बहुत टफ पड़ रहा था इस थियोरी को एक्सेप्ट कर पाना. जैसे अभी तुमको टफ पड़ रहा था कि मैम हमने आज तक न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ा है, समझा है, और लोगों को भी न्यूटोनियन मैकेनिक्स काफी अच्छा लगता था. क्यों? क्योंकि उन चीजों को तुम इजिली ऑब्जर्व कर पाते हो. यू कैन सी द बॉल at a particular height, you can calculate the potential energy. But जब आप गैस मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करते हो तो एक सिंगल मॉलिक्यूल के बारे में you cannot discuss, जिसकी वजह से इसकी थियोरी को एक्सेप्ट कर पाना was a big task to everyone. Okay, but धीरे धीरे जब इसकी थियोरीज इन्वॉल्व हुई तो इस थियोरीज ने एक नया फिजिक्स ही बर्थ कर दिया. मीन्स यू स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट समथिंग जो कि एज्यूम भी नहीं किया जा सकता. मतलब अगर मैं इजीली किसी को क्वांटम मैकेनिक्स समझाने जाऊं तो वो सामने से इंसान मुझे बोलेगा कि आई कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग व्हाट यू वांट टू से, क्योंकि वो चीजें आप डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व नहीं कर पाते, आप देख नहीं पाते, बट स्टिल यू कैन रिलेट. सेम स्टार्टेड विद द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आल्सो. सी, क्या होता है पता है, जब मैंने, अगर समझो मैंने एक बोला कि एक कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स है. कंसीडर करो आइडियल गैस ही लेते हैं, रियल गैसेस के बारे में तो मैं बात ही नहीं करूंगी तुमसे, फिलहाल तो नहीं करूंगी. ठीक है, जब इन गैस मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट किया, हमको पता है कि दे आर रैंडमली मूविंग. ठीक है, अब ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है ना, वेलोसिटीज जो है, द वेलोसिटीज ऑफ दिस गैस मॉलिक्यूल्स, इसका रेंज बहुत बड़ा है. रेंज बहुत बड़ा है मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया कि लेट Vx बी द वेलोसिटी तो सब गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी Vx ही होगी. दिस इज नॉट पॉसिबल. ओके, तो देयर वाज अ पर्सन हुज नेम इज मैक्सवेल्स. ओके, उसने क्या बोला कि हर ये जो इतने सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना, इनकी स्पीड है ना कोई फिक्स्ड स्पीड नहीं है, इनका रेंज है. स्पीड का रेंज है मतलब कुछ ऐसे पार्टिकल्स होंगे जिनकी स्पीड 0 होगी, मतलब दे आर नॉट एट ऑल, दे आर मूविंग. ओके, और कुछ ऐसे पार्टिकल्स होंगे जिनकी स्पीड इंफिनिटी होगी. मतलब ये जो गैस मॉलिक्यूल्स, ये जो कंटेनर है गैस मॉलिक्यूल्स के, उनकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है, इट इज वेरिंग, एंड इट इज वेरिंग फ्रॉम, इट्स लिमिट इज फ्रॉम
0 to infinity कुछ भी स्पीड हो सकती है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये आया कि चलो हमने डिस्कस कर लिया कि रूट मीन स्क्वायर क्या होता है या एवरेज स्पीड क्या होता है, बट प्रॉब्लम ये आना स्टार्ट हुई कि ये 0 से इंफिनिटी है, इतना बड़ा नंबर डिस्कस कैसे किया जाए, किसी को एक्सप्लेन कैसे किया जाए। अब इस चीज को समझने के लिए एक स्टोरी समझाती हूँ, ठीक है, उसके बाद हम इस पे आएंगे। सी देयर वाज अ यू कैन से शॉपकीपर, इट कैन बी 0 ओम, इट इज नॉट मूविंग, समझो टकराया रुक गया, अगर वॉल से टकराया और रुक गया तो वेलोसिटी कैन बी 0 एज वेल, ठीक है। सो इट कैन बी 0 अगर एनर्जी बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, सारी एनर्जी उसने वॉल को पास आउट कर दी तो इट कैन बी 0, ठीक है। सो इट्स फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, इंफिनिटी का मतलब होता है इट कैन बी वेरी वेरी बिग एंड इट कैन बी वेरी, 0 मींस इट इज नॉट अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0, इट इज अप्रोचिंग टू 0, बहुत ज्यादा कम और बहुत ज्यादा, हाँ, ठीक है। So 0 से infinity was the range of the speed. Before now the question was how to represent the speed. ये जो इतना बड़ा रेंज है स्पीड का, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, उसके लिए पहले ये समझो जो मैं आगे समझा रही हूँ। There was a shopkeeper, ठीक है, एक शॉपकीपर था, उसको क्या करना था, एक शॉप ओपन करनी थी, ठीक है। अब शॉप ओपन करनी है तो उसने क्या बोला कि मेरे जो सिटी में जितने भी लोग हैं ना, मुझे एक ऐसा शॉप बनाना है जिसमें मेरे पास जो भी आए, मतलब जितने भी लोग आए, हर किसी को मैं, जो उसका रिक्वायरमेंट, मतलब उसका क्लोथ्स का शॉप था, तो उसके पास जितने भी लोग आते हैं, जितने भी मैन आते हैं, उन सबका आई एम स्पेसिफाइड कि चलो इट्स नॉट फॉर वुमेन्स, मैन का शॉप है जिसमें आपको जीन्स वगैरह मिल रहा है। सो उसने बोला कि मेरे सिटी में जितने भी मैन हैं, सारे साइज के कपड़े मुझे अपने पास रखने हैं, मतलब कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो मेरे शॉप पर आए और रिटर्न बैक चला जाए, ओके। नाउ इट वाज इम्पॉसिबल टू फुलफिल एवरीवन्स चॉइस, करेक्ट। अब ये तो इम्पॉसिबल हो गया कि हर किसी का साइज एग्जैक्टली पता हो, तो शॉपकीपर वाज इन अ बिग टेंशन कि किया तो किया क्या जाए। तो शॉपकीपर ने क्या किया, ही वाज क्वाइट स्मार्ट, उसने क्या किया, एक ग्राफ बनाया, ठीक है, उसने एक ग्राफ बनाया और ग्राफ में उसने क्या किया, एक साइड पे उसने नंबर ऑफ पीपल लिया और दूसरे साइड में उसने साइज लिया, ठीक है, इन दोनों का ग्राफ बनाया और क्या किया, नंबर ऑफ पीपल को ना एक रेंज में डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, समझो 1 से 5 मीटर्स के बीच के लोग हैं, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, डोंट बी सीरियस अबाउट द थिंग्स, 1 मीटर से 5 मीटर के लोग, बीच के लोग इसके सिटी में रहते हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया, एक पर्टिकुलर ग्रुप बनाया, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, ऐसा एक रेंज बनाया उसने, ठीक है। और उस रेंज के हिसाब से नंबर ऑफ पीपल को अरेंज करते गया, मीन्स कैसा, 1 2 3 4, ठीक है, 5। अब उसने क्या किया, इस रेंज के हिसाब से कपड़े रखना स्टार्ट किया और उसने नंबर ऑफ पीपल निकाला कि सिटी में कितने लोग ऐसे हैं जिनको 2 से 3 के बीच में कपड़े की साइज की जरूरत है, 3 to 4 के बीच में कपड़े की साइज की जरूरत है, मतलब उसने ग्रुपिंग कर दी, ठीक है। ग्रुपिंग करके उसने एक ग्राफ बना लिया। ग्राफ बनाने के बाद उसने क्या ऑब्जर्व किया कि एक ऐसा पॉइंट है, देयर इज वन पॉइंट, जिस पॉइंट के, जिस साइज के लोग सबसे ज्यादा है, ठीक है, द अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ पीपल फॉर दिस पर्टिकुलर साइज इज मैक्सिमम। बहुत छोटे लोग भी कम है और बहुत बड़े लोग भी कम है, ओके। बट ये जो पर्टिकुलर, ये जो मिडल वाला पार्ट है, दिस मिडल पार्ट इज मैक्सिमम, ये अमाउंट के साइज ज्यादा है। उस हिसाब से उसने क्या किया, ग्रुपिंग करके साइजेस रखना स्टार्ट किया। सो दिस इज व्हाट इज डन इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी इन द गैसेस आल्सो। ऐसे ही गैसेस के मॉलिक्यूल्स को भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ओके। नाउ गैसेस के मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो मैक्सवेल ने ग्राफ बनाया, इट वाज सिमिलर टू दिस ग्राफ। उसने भी एक ग्राफ बनाया जिसमें एक साइड में उसने क्या रखा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ पर्टिकुलर स्पीड भी, उसने एक पर यूनिट का स्पीड का गैप रखा, दैट इज 0 to 1 के बीच में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं,
1 to 2 के बीच में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, 2 to 3 के बीच में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। इस तरीके से उसने पर यूनिट स्पीड के हिसाब से उसने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को अरेंज किया। फॉर एग्जांपल 0 से 1 के बीच में देयर आर 10 मॉलिक्यूल्स, फिर 1 से 2 के बीच में देयर आर 15 मॉलिक्यूल्स, फिर 2 to 3 के बीच में देयर आर 20 मॉलिक्यूल्स। तो ऐसे उसने पर यूनिट स्पीड के हिसाब से उसने मॉलिक्यूल्स को ऑन द वाई एक्सिस अरेंज किया एंड ऑन एक्स एक्सिस उसने वेलोसिटी को रखा, वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ओके, नाउ जब उसने ग्राफ बनाया, he got the graph like this. Okay, as you can see this graph is not meeting on the x axis क्योंकि it is going to infinity, ये बड़ा 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 होने वाला है। ओके, ये बड़ा होता जाएगा कंटिन्यूसली। उसने फिर क्या ऑब्जर्व किया, लेट्स टेक दिस पर्टिकुलर एरिया, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। मतलब ये वो वेलोसिटी है, ये वो वेलोसिटी का एरिया है जहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, मैक्सिमम है। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी इतना पाया जाता है और इस पर्टिकुलर पॉइंट को बोला जाता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मतलब सबसे ज्यादा पाई जाने वाले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिसकी वेलोसिटी क्या है, इतनी है। दिस इज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, करेक्ट। उसके बाजू में थोड़ा सा शिफ्टेड आपको एवरेज वेलोसिटी मिलेगा और उसके बाजू में थोड़ा सा शिफ्टेड एवरेज के जस्ट बाजू में आपको मिलेगा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मतलब दिस वन इज द मोस्ट प्रोबेबल, दिस वन इज द एवरेज एंड दिस इज वन इज द रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ओके, मोस्ट प्रोबेबल का मतलब होता है जो they are using different experiments on, they are using different experiments, that's why they are scientists. Okay, अभी तुमको ये समझने में ही कितना मुश्किल हो रहा होगा, करेक्ट। और दे हैव फॉर्म्ड इट, और सबसे बड़ी बात इसी मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन के हेल्प पे आपके प्रोबेबिलिटी का यूज करके, सी दिस ऑल इज प्रोबेबिलिटी। ऐसा नहीं है कि मैंने मोस्ट प्रोबेबल बोल दिया तो मतलब एकदम फिक्स्ड अमाउंट उनको मिलेगा, दे हैव गॉट अ रेंज। अब अच्छा हुआ हमने ये क्वेश्चन पूछा, सी ऑलवेज रिमेम्बर, अच्छा हुआ यू मेक मी रिमाइंडेड। सी मैंने स्टार्टिंग में बोला कि ये जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ने क्वांटम मैकेनिक्स को बर्थ दिया। कैसे दिया वो समझो। ये जो आप निकाल रहे हो ना, मोस्ट प्रोबेबल, एवरेज वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये कभी भी फिक्स्ड वैल्यूज नहीं थी उनके पास। दे यूज अ प्रोबेबिलिटी कि ये जो मोस्ट प्रोबेबल है ना, ये इस यहाँ से यहाँ तक के रेंज में अवेलेबल है, ये जो एवरेज है ना वो यहाँ से यहाँ तक के रेंज में अवेलेबल है। मींस इन द टर्म्स ऑफ गैसेस आप फिक्स्ड कभी भी बात नहीं करते, आप प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करते हो, समझे। यू टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी, आप मैथमेटिक्स या फिजिक्स में यूज करते हो। सो दोस थिंग्स गेट ट्विस्टेड, इतना ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगी, बट जस्ट कीप इट इन माइंड व्हाट दे आर डूइंग। अभी तक कुछ नहीं समझा है तो पूछो जरा यहाँ तक प्लीज, उसके बाद ही आगे बढ़ूंगी। या कुछ नहीं समझा है तो वो भी बोलो, क्योंकि मुझे पता है कि ये थोड़ा सा हायर लेवल जाने वाला है तुमको। मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड, इट इज गोइंग टू बी अ टफ पार्ट फॉर यू। Is there anyone? Ayush, are you there? Ayush, are you there? हाँ आयुष, जरा अपने आप को अनम्यूट करना, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। नहीं हो रहा है क्या? हेलो। हाँ, फर्स्ट एग्जांपल मैंने जो समझाया जरा रिपीट करेगा प्लीज। मैम फर्स्ट एग्जांपल में आपने बताया एक शॉपकीपर है जो एक जहाँ पे रहता है, उसको चाहिए कि सबके साइज का कपड़ा मिले उसको। तो इसलिए उसने स्केल बनाया, मतलब एक ग्राफ बनाया, एक साइड नंबर ऑफ पीपल और एक साइड नंबर ऑफ साइजेस लिया। और फिर उसका जब उसने ग्राफ प्लॉट किया तो उसको पता चला कि एक जो मिड रेंज है 2 से 3 के बीच में इतने साइज पहनने वाले ज्यादा लोग हैं, तो इस हिसाब से उसने कपड़े अरेंज किए। ये कंसेप्ट समझा सबको? मतलब एग्जैक्टली वो कर क्या रहा है, इज अरेंजिंग द नंबर ऑफ पीपल अकॉर्डिंग टू द साइजेस। ऑफ कोर्स साइज ऐसा नहीं है कि उसने साइज 1 ऐसा भी नहीं लिया कि 1 से 2 के बीच में 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ऐसा नहीं किया है उसने। दे हैव टेकन एन
व्हाट वी से ही हैव ग्रुप्ड इट कि 1 से 2 के बीच में नंबर ऑफ पीपल आर दिस मच, 2 से 3 के बीच में नंबर ऑफ पीपल आर दिस। उसके बाद उसने साइज के साथ दिस नंबर ऑफ पीपल का ग्राफ बनाया एंड ही गॉट द ग्राफ समथिंग लाइक दिस। उसने 2 चीजें ऑब्जर्व की कि एक तो बहुत छोटे लोग भी बहुत कम है और बहुत बड़े लोग भी बहुत कम है, मतलब मिडिल का जो साइज है वो मोस्ट प्रोबेबल नंबर ऑफ पीपल को मिल रहा है। ठीक है, सेम वैसे ही गैसेस के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी के लिए भी ये ग्राफ का यूज किया मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ड्रॉ दिस ग्राफ। ओके, मैक्सवेल ने क्या निकाला कि उसने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिया इन अ रेंज ऑफ पर्टिकुलर वेलोसिटीज। ऑफ कोर्स फ्रॉम 1 to 2 इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, 2 to 3 मीटर पर सेकंड के इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, 3 to 4 मीटर पर सेकंड मीटर के इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। और उसने इस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का इन अ पर्टिकुलर वेलोसिटी v का ग्राफ किसके साथ, किसके वर्सेस में बनाया, वेलोसिटी के वर्सेस में। सो ही ड्रॉ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस वेलोसिटी, ही गॉट द ग्राफ समथिंग लाइक दिस। उसको जो ग्राफ मिला, द ग्राफ वाज स्टार्टिंग फ्रॉम 0, बट कीप इट इन माइंड कि ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस पे मीट हो रहा है आगे, क्योंकि इट इज गोइंग टू इंफिनिटी। ओके, नाउ व्हाट ही फाउंड आफ्टर दैट कि एक ऐसा पॉइंट है, ऑफ कोर्स जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिनकी स्पीड बहुत कम है, ठीक है, उनका अमाउंट भी बहुत कम है, और जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा है उनका अमाउंट भी बहुत कम है। मतलब मोस्ट ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या आ रहे हैं, मिड रेंज में आ रहे हैं। सो ये जो मैक्सिमम पाने वाली वेलोसिटी है इसको मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बोला जाता है। और ऑफ कोर्स हियर दे आर नॉट हैविंग अ फिक्स्ड वैल्यू, they get a range. In gases and in quantum mechanics you always talk about probability and a range. आप फिक्स्ड वैल्यूज के साथ बात नहीं करते कभी भी। ओके, उसके बाद मोस्ट प्रोबेबल के आगे जस्ट दूसरा पाया गया एवरेज। अब ये क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे दिमाग में, जो कि आना चाहिए कि मैम ये जो एवरेज है ना ये सेंटर में क्यों नहीं आया, व्हाई इट इज शिफ्टेड। अगर देखो ये मोस्ट प्रोबेबल वाला पार्ट है और एवरेज कहाँ आ रहा है, एवरेज यहाँ आ रहा है, एवरेज इज शिफ्टेड। इसके पीछे रीजन ये है कि ये ग्राफ जो है ये आगे आगे बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका एवरेज थोड़ा सा शिफ्टेड है। दिस वन इज द मोस्ट प्रोबेबल, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला वेलोसिटी है ये। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा इस वेलोसिटी के मिल रहे हैं। ठीक है, दिस वन, दिस लाइन इज द एवरेज स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल एंड दिस वन इज द रूट मीन स्क्वायर स्पीड। और अगर तुम माइक्रोस्कोपिक पे जाके देखोगे तो यू विल फाइंड कि एवरेज और रूट मीन स्क्वायर ऑलमोस्ट सेम हो जाता है, मतलब बहुत बड़ा वैल्यूज में डिफरेंस नहीं मिलेगा। आप एवरेज निकालो और आप रूट मीन स्क्वायर निकालोगे तो ऑलमोस्ट जो वैल्यूज आती है इस केस में इट विल बी सिमिलर। ठीक है, बट वी प्रिफर रूट मीन स्क्वायर ओनली। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब मैंने क्या किया, आई ड्रॉ अ ग्राफ। हाँ ओम प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके पूछो। ओम प्लीज आस्क। मैम वो जो उसने प्रोबेबिलिटी जैसा निकाला है हाँ साइंटिस्ट ने, तो कोई एक एक्सपेरिमेंट ऐसा आइडिया बताओ कि लाइक कैसे होता है। आई कैन नॉट गो फॉर दैट ओम, आपका लेवल नहीं है उस लेवल पे मुझे मेरा डिस्कस करने का। ओके, क्योंकि सी एज आई सेड कि इट्स ऑल अबाउट क्वांटम मैकेनिक्स, ये जो सारी चीजें है ना ये क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ जा रही है। ठीक है, तो अगर मैं वो सारी चीजें, अभी तुमको समझ में आ रहा होगा कि दिस थिंग्स आर वेरी टफ टू एंगल्फ, आपको समझने के लिए और अंदर लेने के लिए टफ पड़ रहा होगा। हाँ मैम। ठीक है, सो इफ आई डिस्कस अबाउट मैक्सवेल्स का बड़ा बड़ा इक्वेशंस एंड इफ आई डिस्कस अबाउट द एक्सपेरिमेंट्स तो वो चीजें और टफ हो जाएगी आपके लिए। ओके, ठीक है। अच्छा मैम, क्वांटम मैकेनिक्स इज बेस्ड ऑल अपॉन assumptions ना? assumptions बोल सकते हो, मतलब इट्स एन इमेजिनरी वर्ल्ड, पूरी तरीके से इमेजिनरी वर्ल्ड होता है वो, जो कि बिहेव करता है आपके रियल वर्ल्ड जैसा। ओके, सो फॉर अंडरस्टैंडिंग दोस थिंग्स यू एटलीस्ट रिक्वायर मोर नॉलेज नाउ। तो फिलहाल सिर्फ बेसिक समझ के ले लो अभी। ठीक है, सो ही ड्रॉ ग्राफ ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस वेलोसिटी, और ये जो ग्राफ है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस वेलोसिटी, इसको ये जो फंक्शन है number of molecules as a function of velocity or as a function of speed. Okay, here I'll simply talk in the terms of speed, not velocity. So number of molecules versus speed का ये जो ग्राफ बना है
दिस ग्राफ इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड. इस ग्राफ को नाम दिया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड. ओके, दिस ग्राफ इज known as distribution of speed. जब भी आप number of molecules in a particular range of velocity को compare करते हो speed के साथ, so this जो भी ग्राफ आपका बनता है, this graph is known as distribution of speed. Okay, now जरा आप ध्यान से समझना जो भी चीजें बोल रही हूँ. हेलो मैम. ठीक है, वापस से मैं. हाँ मैम, एक और डाउट है. वो शॉपकीपर के एग्जांपल पे एक मिनट लो कैमरा. हाँ बोलो. हाँ मैम, लाइक अभी वो शॉप, जब ये ग्राफ लाइक नीचे का ग्राफ मैं बता रहा हूँ एक्सटेंड होते जाता है एकदम आगे आगे, तो लाइक वो रेंज के पीपल ज्यादा होंगे ना वैसा? नहीं, नंबर ऑफ पीपल. आयुष, नंबर ऑफ पीपल कहाँ पर है? अच्छा ठीक है, नंबर ऑफ, मैं इस लेवल तक जाके बात नहीं करती, तुम्हारे लेवल पे बात करती हूँ. ठीक है, जब हम क्लासरूम में जाते हैं जीनियस में, ऐसा है क्या कि लंबे लोग बहुत ज्यादा है? नहीं. इज इट देयर? छोटे लोग बहुत ज्यादा है, ऐसा है क्या? हाँ. नहीं, नहीं ऐसा मतलब? नहीं है. तू किसको छोटा समझता है, मैटर वो करता है. बट अगर साइज कंपेयर किया जाए तुम्हारे क्लास में, तुम्हारे 160 के पीपल में, तो व्हाट यू विल फाइंड कि बहुत लंबे लोग भी बहुत कम है, मतलब सृष्टि जैसे लोग भी बहुत कम है, और बहुत मानसी मैम जैसे लोग भी बहुत कम है ना? तो ऑन एन एवरेज मिलता है कि आप लोग की साइज ऑन एन एवरेज क्या हो जाती है, सेम मिलती है. करेक्ट. सो ये जो स्पेशल केसेस है ना कि 0 या बहुत छोटा या बहुत बड़ा, ये केसेस है ना, नंबर ऑफ पीपल एट दिस केसेस आर स्मॉल. बट ये जो मिड वाला है ना, जिसको मैंने यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बोला, ठीक है, जो सबसे ज्यादा मिलने वाला है, वो कौन सा हाइट होगा? सबसे ज्यादा मिलने वाला हाइट कौन सा होगा? जो मिडल रेंज होगा. मिडिल रेंज. करेक्ट, जो टीनेजर्स का नॉर्मली होता है. यस, समझ में आ रहा है? सो दिस इज मोस्ट प्रोबेबल वन. समझा? हाँ मैम. शुड आई गो अहेड देन? ठीक है. सो हियर as I said, what is this graph made from? Number of molecules in a particular range of velocity versus speed. ठीक है, number of molecules in a particular range of velocity versus speed का आपका ग्राफ बनाया गया है. You got a graph something like this. It starts from 0, but it never meets your x-axis, because here we are taking the speed of the molecule as starting from 0 to infinity. Means it is not touching your x-axis. Speed पे speed infinity जा रही है, और इंफिनिटी का मतलब ही होता है कि इट इज नॉट डिफाइंड कि खत्म कहाँ पे होगा. समझ में आया? सो दिस ग्राफ, व्हेन यू हैव अ फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द स्पीड, जब आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को स्पीड के साथ कंपेयर करते हो और जो डिस्ट्रीब्यूशन आप तैयार करते हो, दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड. दिस वाज डन बाय मैक्सवेल ने इसके बेसिस पे बहुत सारे बड़े बड़े डेरिवेशंस क्रिएट किए हैं. अब यहाँ पर जब मैक्सवेल ने इन चीजों के बारे में डिस्कस किया, मैक्सवेल ने एक चीज को कांस्टेंट रखा था, वो था टेम्परेचर. हर टेम्परेचर के लिए ग्राफ अलग बनता है. फॉर एवरी टेम्परेचर देयर आर डिफरेंट ग्राफ्स, कीप इट इन माइंड. यहाँ पर जब उसने ये डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट किया, जब उसने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को स्पीड के साथ कनेक्ट किया, तब उसने अपने गैस का जो टेम्परेचर था वो फिक्स कर दिया था. ओके, मतलब अगर आपका टेम्परेचर कम है तो ग्राफ का शेप कुछ अलग होगा, अगर आपका टेम्परेचर ज्यादा है तो ग्राफ का शेप कुछ अलग होगा. कीप इट इन माइंड. ओके, सो ही फिक्स्ड द टेम्परेचर एंड ही ड्रॉ दिस ग्राफ. ओके, सो द फंक्शन of number of, if there is a function in which you are comparing the number of molecules with its speed, of course यहाँ पे molecules का range लेने वाले हैं. ऐसा नहीं है कि हर एक molecule 1 2 3, ऐसा नहीं. What will take, how will take the number of molecules कि 1 से 10 के बीच में कितने number of molecules है, 10 से 20 के बीच में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, 20 से 30 के बीच में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, इस तरीके से रेंज लिया है. ऐसा नहीं है कि वन फर्स्ट मॉलिक्यूल को देखा, सेकंड मॉलिक्यूल को देखा, थर्ड मॉलिक्यूल को देखा, फोर्थ को देखा, ऐसा नहीं. इट हैव टेकन अ रेंज ऑफ अ वेलोसिटी. सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट स्पीड को किसके साथ कंपेयर किया है? स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स के साथ. एंड ही गॉट द ग्राफ लाइक दिस. अब हियर अगर आप ये शेडेड रीजन को देखो ध्यान से, दिस मोस्ट प्रोबेबल वन आई एम टॉकिंग अबाउट. ठीक है, ग्राफ में वापस ड्रॉ कर रही हूँ फॉर मेक यू क्लियर, फॉर मेकिंग यू क्लियर. तो ध्यान से देखो ग्राफ. आई एम ड्रॉइंग द ग्राफ अगेन. ठीक है,
दिस इज एनवी, एनवी से क्यों रिप्रेजेंट कर रही हूँ, दिस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ पर्टिकुलर रेंज ऑफ स्पीड, ठीक है, दिस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हाँ, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ग्राफ थोड़ा सा फ्लैट होगा, मैं वो सारी चीजें डिस्कस नहीं कर रही हूँ, आई एम नॉट गोइंग विद दैट, आई एम नॉट चेंजिंग द टेम्परेचर, मैं टेम्परेचर चेंज नहीं कर रही हूँ, आपके लेवल पे नहीं है अभी वो, अभी आप सिर्फ यही समझ जाओ, आपके लिए फिलहाल सिर्फ इतना समझना है कि जब भी आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ पर्टिकुलर रेंज ऑफ स्पीड को स्पीड के साथ कंपेयर करते हो मॉलिक्यूल्स के, और जो आपका ग्राफ बनता है दैट ग्राफ इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड, दैट्स ऑल, फिलहाल आपको उतना ही समझना है। टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर कम किया, ये शायद मोस्टली अगर हुआ तो आपके एंट्रेंस में होगा, और मोस्ट प्रोबेबली मुझे जहां तक लगता है आपके एंट्रेंस में भी ये कवर नहीं किया जाएगा, बिकॉज इट इज ऑफ लिटिल हायर लेवल, थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता है, बट मोस्टली क्या होता है, मैं जस्ट क्वेश्चन आपने पूछ लिया तो मैं बता देती हूँ कि जब आप टेम्परेचर when your temperature is high, आपका जो ग्राफ होता है वो फ्लैट हो जाता है, और जब आपका टेम्परेचर लो होता है आपका जो ग्राफ होता है वो पतला और शार्प हो जाता है। दिस इज व्हाट आई कैन से, एक्सप्लेनेशन भी आपको फिलहाल नहीं दूंगी कि ऐसा क्यों होता है। आर यू क्लियर विद टिल नाउ? कैन आई गो अहेड? जो भी था प्लीज अनम्यूट करो, आई मिस्ड योर मैसेज। मैम अगर टेम्परेचर को चेंज करेंगे थोड़ा बहुत भी तो लाइक जीरो के रेंज में जो मॉलिक्यूल्स है बहुत कम हो जाएंगे ना। सी इफ आई दैट डिपेंड्स ऑन कि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो या टेम्परेचर कम कर रहे हो, बढ़ा क्योंकि रहा हूँ हर लाइक टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल्स अलग अलग बिहेव करता है। मैंने अभी बताया कि मैं ना टेम्परेचर को नहीं डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि क्या होता है जब आप टेम्परेचर चेंज करते हो, ठीक है थोड़ा बहुत चेंज किया तो कोई खास इफेक्ट नहीं दिखेगा आपको, बट अगर आप टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई या बहुत ज्यादा लो करते हो ना, आपका पार्टिकल का नेचर ही चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, देन अगेन यू गो टू क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, बिकॉज हम यहाँ पे पार्टिकल लेवल पे आकर बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको? So, मैं बहुत ज्यादा टेम्परेचर के बारे में I'll not introduce here. You just need to understand if you change the temperature, there will be effect on the graph. That there will be a change in the size and shape of the graph. समझे? Okay. Now here, this was the graph drawn by Maxwell. It is not touching, of course. Please ध्यान देना कि ये coincide, आपको ये ग्राफ आ सकता है in your entrance. आपको ये ग्राफ टच करके देगा वो एक्स एक्सिस पे, आपको ये बात ध्यान रखना है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 बट इट इज नॉट टचिंग टू योर एक्स एक्सिस। ओके, सो we'll go ahead. दिख रहा है? क्या दिख रहा है? Is it visible to everyone? Okay, so as I was talking about this graph, okay, हमने क्या बोला, this was number of molecules versus your what speed, ठीक है, हमने number of molecules को as a function of speed हमने ग्राफ बनाया है, and what we are observing here that अगर समझो एक पर्टिकुलर आपने एक शेडेड रीजन लिया, यहाँ पर टेक द स्पीड एज v, और यहाँ पर स्पीड अगर ये जो शेडेड रीजन है ये dv है, सो दिस विल बी योर दिस पार्ट वन, दिस वन विल बी योर v प्लस dv, ठीक है, v से स्टार्ट हो रहा है और v प्लस dv पे खत्म हो रहा है, दिस टोटल डिफरेंस इज dv, ठीक है। सो बाय टेकिंग दिस एरिया, अगर आप इसका एरिया निकालो, so you know how to take an area, of course it is similar, it is looking like an rectangle, so length into breadth, so if you simply multiply number of molecules in a particular range of velocity with the speed,
अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, दैट इज NV multiplied by DV, you will get total number of molecules with a speed range of V and V plus DV. मतलब V plus V और V plus DV के बीच में ये जो DV अमाउंट ऑफ वेलोसिटी है, ये कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ है, मॉलिक्यूल्स के पास है, ये आपको मिल जाएगा. Means it is between if you take the area as NV DV, you'll simply find that अगर आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, you multiply this NV with this DV, आपको पता चल जाएगा कि ये जो DV अमाउंट ऑफ वेलोसिटी है, ये कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास है. This is number of molecules in this particular range V, and this one is your DV. Are you clear till now? समझा मैंने क्या बोला? Is there anyone जिसको कोई डाउट है? Please ask. Please unmute yourself and ask. हेलो मैम. हाँ पूछो. मैम जो आपने बताया अभी रिपीट करो ना वापस से वही. जो NVDV समझाया वो. हाँ मैम, आपकी आवाज क्लियर नहीं आई. ओके ठीक है, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ. दिख रहा है? मैं जो लिख रही हूँ सबको विजिबल है? Whatever I am writing, is it visible to everyone? हाँ मैम दिख रहा है. If I am writing something, you can see ना? Okay, fine. So I'm going ahead. देखो, what I said, on y-axis there is a number of molecules per unit velocity, correct? Per unit speed number of molecules का है, okay? और ये side में क्या है? There is a speed. So if you multiply NV with this speed DV, this is number of molecules per unit, correct? This is per unit speed. So यहाँ पे speed and speed was cancelled, you get the number of molecules. और ये कौन से number of molecules है? ये वो number of molecules है जो इस is it visible whatever I am writing? मिस आपका वीडियो पॉज हुआ है. वीडियो पॉज हुआ है, वेट फॉर अ व्हाइल. Is it visible now? मैम वीडियो पॉज ही दिखा रहा है एंड वॉइस आपका ब्रेकिंग में हो रहा है. मतलब अभी तो थोड़ा सा ठीक था बट ब्रेक हो रहा था जब आप एक्सप्लेन कर रही हो. Okay, fine. Fine, wait. Okay, fine, wait for a while. Everyone, is it visible now? Okay, so here, this is the graph. I'm taking this shaded area. If I multiply this NV with this DV, I'll get the number of molecules with a velocity of DV from this graph. इस ग्राफ के हेल्प से अगर आप NV DV मल्टीप्लाई करो
तो आपको वो पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर रेंज ऑफ डीवी में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, जिनका स्पीड कहाँ से कहाँ पर होता है, v से v प्लस dv के बीच में रेंज करता है. दिस इज व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन. इफ यू सिंपली मल्टीप्लाई I don't understand. I don't understand things. If I multiply NV/dV molecules with the velocity between v and v plus dv, v और v plus dv के बीच में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिनका स्पीड v और v plus dv के बीच में एग्जिस्ट करता है, ये हमको मिल जाएगा if you simply multiply NV/dv. That is the area of this shaded region. Okay. Anyone who is having doubt here? कोई है सर जिसको कोई डाउट है, or should I go ahead? Okay. No one have doubt. Fine. Om, please unmute yourself and ask the question, please. मैम थोड़ा नहीं समझा, लाइक वीडियो पॉज ऐसा हो गया था इसलिए. अच्छा ठीक है, देखो ये समझा कि आपने यहाँ पर क्या फंक्शन ड्रॉ किया है. You have simply drawn number of molecules versus speed. ठीक है. अब अगर आपको पता करना है v और v plus dv के बीच में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो आप क्या करो, सिर्फ ये जिस पर्टिकुलर रेंज में आपको पता करना है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, वो रेंज आप कंसीडर करो. लेट अस कंसीडर दैट रेंज इज, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम v and it is ending as v plus dv. Okay. Now v और v plus dv के बीच में जो रेंज है उसमें कौन सी अमाउंट ऑफ वेलोसिटी है, dv अमाउंट है. dv क्यों, It is starting from dv v. क्यों मैम? बच्चे देख यहाँ पे ध्यान दे, वेलोसिटी इज स्टार्टिंग फ्रॉम 2. ठीक है. इट इज एंडिंग एट 3. ठीक है. तो ये जो बीच में ये जो रेंज आएगा, ये कितने का रेंज बन रहा है, 3 से 2 का, दैट इज 3 - 2. कितने का रेंज है दोनों के बीच में, 1 मीटर पर सेकेंड का. समझ में आ रहा है व्हाट आई सेड? मतलब इस 3, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 2 एंड इट इज एंडिंग एट 3. मतलब इसके बीच में 1 मीटर पर सेकेंड के कितने ऐसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिनका स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड में पड़ रहा है. मींस इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 2 एंड इट इज एंडिंग एट 3. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. बट इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? द डिफरेंस इज 1 मीटर पर सेकेंड. समझ में आया व्हाट आई सेड? हाँ हाँ. So अगर इस पॉइंट पे the amount of number is nv and you simply multiply nv with 1 meter per second. If you multiply this nv with dv, you will get the total number of molecules जिनका वेलोसिटी कहाँ से कहाँ में रेंज होगा, जिनका वेलोसिटी इस डिफरेंस में रेंज होगा. 2 मीटर. समझ में आया? Are you clear with the things now? Yes, yes. Okay. Now anyone else जिसको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आस्क. Okay, so today I'm stopping here. I'll revise these things again because ये heavy पड़ेगा. I'll revise these things again tomorrow or day after tomorrow, whenever we'll have a lecture. Of course tomorrow. One more thing, I'm going to give you some sums. मैं कुछ sums के questions तुमको PDF में send कर रही हूँ, which is related to your first topic, that is root mean square. I would like कि तुम वो टॉपिक पहले वो सम्स खुद से सॉल्व करो, and again I'll discuss all the sums with you tomorrow. पहले तुम ट्राई करो by using those formulas, कनेक्ट करने की कोशिश करो. उसके बाद I'll discuss all the sums with you. मैं सारे सम्स आपके साथ डिस्कस करूंगी, but I want